Assalamu alaikum 7th class. Today is our lecture number 7 of computer. Chapter number 7 the internet and email. Okay class, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. The role of internet cannot be undermined in today's world. It is the most used medium for communication, business and research. इसके रोल से कोई भी इनकार नहीं कर सकता. आपको वीडियो भी इंटरनेट पे ही मिल रही है, लेक्चर्स आपके तमाम इंटरनेट पे ही आ रहे हैं, ठीक है. और ये क्या है? सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है. Along with the variety of choices available on the internet, its convenient usage is another advantage that makes the internet popular worldwide. However, its convenience is also considered a disadvantage. उसके convenience के जहाँ पर advantage है वहीं पे disadvantage भी है, ठीक. Disadvantage क्या है? From the security point of view, and the many cases of the online frauds have been reported in the recent past, ठीक. A frequent users of the internet lets you see how it works. Understand an email is an important form of communication and the major security threats that we need to be aware. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ इंटरनेट. पहले इंट्रो था, अब इंटरनेट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. यू मस्ट हैव बीन सीन वेरियस नेटवर्क्स लाइक रोड्स, railways and the power supply, cable networks. Every network consists of the similar or the different points of components that are interconnected with each other, ठीक है. आपने मुख्तलिफ यहाँ पर आपने नेटवर्क्स देखे होंगे, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं. दिस काइंड ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर्म अ नेटवर्क. और उनके दरमियान में जो कनेक्शन होता है वो क्या बना देता है? हमारे पास एक नेटवर्क बना देता है. In the same manner, the internet is also a worldwide network where millions of computers are interconnected with each other. बिल्कुल उसी तरह से इंटरनेट में क्या होता है? मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके एक नेटवर्क बना देते हैं. These connected computers can share data, information and hardware with each other. एक दूसरे के साथ डेटा भी शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन भी और हार्डवेयर डिवाइसेस भी. जैसे अगर हमारे पास एक कनेक्शन हो कंप्यूटर्स का, ऑफिस की एग्जांपल ले लें या स्कूल में ले लें, लैब की एग्जांपल ले लें, ठीक है. लेट्स सपोज हमारा प्रिंटर जस्ट सर्वर के साथ कनेक्ट है, ठीक है, मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है. हम अपने दूसरे कंप्यूटर में बैठ के प्रिंटिंग की कमांड दे सकते हैं, ठीक है. हम उसके हार्डवेयर यूज़ कर सकते हैं उस कंप्यूटर का, ठीक. और इसी तरह से दूसरे हार्डवेयर्स भी हम ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं. वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट of the technology to mankind, the internet has brought the entire world closer. The invention of the internet has drastically altered our lives and lifestyles, ठीक है. इसने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया हुआ है. It has succeeded in making the whole world a global village बना दिया. The use of internet has made computer and smartphone the most effective communication tools today. The role of internet cannot be undermined in the world of business today. Every day, in fact, we are making technological advances and devising better ways of interacting, communicating and working. Next क्या है? How the internet work. Various components that are part of the internet networks included workstations, hub, switch routers, modems, इनको हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं, and other communication channels like optical fibers, wires and the Wi-Fi devices. These devices can communicate with each other using a communication medium. Let's understand this with the help of the real life example. On occasions like festivals and the other celebrations, say you visit a restaurant. Once you enter the restaurant and you are seated, you call for the menu and order a few items of your choice. For the restaurant, you are a client, ठीक. The server comes to you and takes your order. Once your order is ready, he or she delivers what you had asked for, ठीक. जिस तरह से रेस्टोरेंट में काम होता है उसी तरह से इंटरनेट पे भी काम हो रहा है.
नेक्स्ट पढ़ते हैं इनको डिटेल में, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वर्क स्टेशन, हब, स्विच रूटर, मॉडेम, ऑप्टिकल फाइबर एंड वाईफाई। सबसे पहले हमारे पास वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या है? स्पेशल कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर टेक्निकल और द साइंटिफिक एप्लीकेशन, commonly used by one person at a time. They are usually connected to a local area network, LAN की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, एंड रन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हब, द मोस्ट बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर टू अदर नेटवर्क डिवाइसेस टुगेदर, जिसकी मदद से मल्टीपल कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है स्विच रूटर, a device that combines the abilities of both the switches and the routers। वो वाली डिवाइस जिसमें स्विचेस और रूटर्स की दोनों की खसूसियात होती हैं, ठीक है, दोनों की एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। लाइक अ स्विच, इट फॉरवर्ड्स डेटा बेस्ड ऑन द डिवाइसेस फिजिकल एड्रेस और एज अ रूटर। स्विच क्या करता है कि मल्टीपल डिवाइसेस को एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देता है, और रूटर क्या करता है? मल्टीपल डिवाइसेस को मल्टीपल नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देता है। और स्विच रूटर क्या करेगा? उसके अंदर दोनों की एबिलिटीज़ मौजूद होगी। नेक्स्ट है मॉडेम, दिस स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड द डीमॉड्यूलेटर। इट अनेबल्स अ कंप्यूटर टू सेंड डाटा वाया द टेलीफोन और द our cable lines and also convert digital data into analog or the vice versa. Next है optical fiber, the use of the glass or the plastic threads to send data. The fiber optic consists of a bundle of glass threads, each of which efficiently transmits messages onto light waves. Next है Wi-Fi. This is the way of connecting to a computer network using radio waves instead of wires. It is used for internet connection, ठीक है, जिसमें वायर्स यूज़ नहीं होती, वो वाईफाई वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करता है वाईफाई, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में होती है क्या है? हमारे पास जो सी फाइबर वायर्स होती हैं वो ग्लास की होती हैं। इन सिंपल टर्म, द इंटरनेट इज़ बेस्ड ऑन अ specific architect called the client server architect. In this kind of relationship, a client computer sends a request to the server computer for the resource like data, information and the hardware. The server computer listens to the network request sent by the client computer and thereafter processes the request. Once the request is processed, the required resources are made available for the client computer. ओके, इंटरनेट क्या है? उसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट भी बोलेंगे, ठीक है। जिस तरह से इस रिलेशनशिप में क्या होगा कि क्लाइंट क्या करेगा? कोई रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, ठीक है, और सर्वर फिर क्या करेगा? कोई भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन की, कोई हार्डवेयर डिवाइस की। फिर सर्वर क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को सुनेगा और उस रिक्वेस्ट को फिर फुलफिल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जैसे इंटरनेट में हम क्लाइंट हैं और इंटरनेट जो हमारा प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट सर्वर, वो हमारा सर्वर है, ठीक है। हम उसके लिए कोई भी चीज़ अगर हमने सर्च करनी होती है तो हम उसको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है। वो हमारी रिक्वेस्ट सुनता है, फिर उसके बाद हमें उसका रिजल्ट देता है, ठीक। हम क्लाइंट हैं और वो सर्वर है। क्लाइंट क्या है? अ प्रोग्राम डैट इज़ कैपेबल ऑफ ऑब्टेनिंग अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अनदर पर्सन, अनदर प्रोग्राम। ओके क्लास, यहाँ तक डेट मेंशन करें। आपने इंपॉर्टेंट यहाँ तक रीडिंग करनी है, कीवर्ड्स लर्न करने हैं और रीडिंग में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढ के आपने लर्न करने हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।